फंक्शन है अवार्ड्स का, इट्स गोइंग टू लेवल. There's a brilliant lineup of people who you recognize and you're honoring today. तो प्लीज़ बताइए आज क्या बताऊं? about the awards, It's about the it's lineup. it's such a sentimental feeling this evening. Really to talk about, trust me, शब्दों की कमी पड़ेगी. It's such a, it was a thought initially. We had just a thought कि ऐसा कुछ करना चाहिए हमको. God was kind enough to give us that courage that we are trying to take it forward in the right manner, in the right direction. And to talk about these unsung heroes of the Indian soil, from the armed forces. Trust me, talking is like just adding something from my side. You will see the show for yourself. You will know what they are, what they have done for the Indian soil. आज हम और आप जो आज सांसें ले रहे हैं, इन्हीं के कर्जदार हैं. We need to understand that and make them so clear in their hearts that even if they are there in the front, we are there to take care of them, of their families, if something goes wrong to them. That's basically the message we should try to convey as citizens of the continent. उनसे जब मैं बात कर रहा था, उन्हें गर्व था अपने बच्चों पर. नमी आंखों में ज़रूर रहती है. जब मेरे अगर नमी आ सकती है, उनके तो में एक वो था कि भाई उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया देश के लिए जिन पे उनको ऐसे माँ बाप गर्व है. आज बीवियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं. पैशन ये है कि वो somebody has lost his father, वो बच्चा बोल रहा है I will join the army. That's the message. Great. मतलब you just can't imagine what the levels are. आप आई, आपने पर्सनली लुक्ड इनटू एवरीथिंग. तो एक जो फेवरेट होता है ना अपने शो में, जो एक सबसे इमोशनल मोमेंट रहता है. I hope, I just pray to the Almighty, things go well, very smoothly as we have planned. Nothing goes wrong. I'll be highly indebted to the Lord कि उन्होंने इतनी हमें ताकत दी, हम कुछ डिलीवर कर पा रहे हैं. बाकी आपको मैं दिल से बोलता हूँ, वंस इट गोज़ पैन इंडिया, जब तक आवाम इसको समझेगा नहीं, हम इन लोगों की कदर नहीं कर पाएंगे. दे आर रियली द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द इंडियन सॉइल एंड वी लुक फॉरवर्ड to really ensure that they are given the right mileage. Congratulations, आप काम कर रहे हैं. हम मानते हैं कि हीरोज फ्रॉम रियल लाइफ, हम रियल लाइफ जो होती है उसको ज़्यादा हीरो मानते हैं, और उनको एक्चुअली में भी सरकार हो या हम लोग भी एक्चुअली उनको जितना उनका सम्मान होना चाहिए वो नहीं हो पाता. डेफिनेटली यू डूइंग गुड जॉब, बट यू लॉट्स ऑफ पीपल शुड कम फॉरवर्ड. सोहेल भाई, आपने ठीक फरमाया. रियल लाइफ एंड रियल लाइफ. रियल लाइफ में तो सभी हीरो हैं. आप भी हैं, मैं भी हूँ. ये जितने फनकार हैं बॉलीवुड के आज अपने आप में बादशाह हैं. बट हम कितना इन वीरों को याद करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. ट्रस्ट मी, दे आर द वंस हु शुड बी ओनली टर्म्ड एज द हीरोज ऑफ लाइफ. हीरो, आज मेरा बेटा मुझे हीरो समझता है, आपका बच्चा आपके बच्चे आप हीरो समझते होंगे. बट हीरो इन रियल लाइफ, बॉस, वी आर नॉट हीरोज. वी आर जस्ट दोज कॉमन मैन in the society at large who are trying to do something for our own families, not for the nation. These are those giants who are doing something for the nation at large, and they are taking the Indian continent at great heights. One small message would you like to give on this particular occasion to the audience actually? मतलब क्या ऐसी छोटी-छोटी बातों में भी you can become do something like that. Friends, let's come forward, understand what they are doing for our nation at large. Whether it's the police, whether it's the fire department, the army, the navy, whosoever in the government department today, trust me, they are doing wonders for us. We should acknowledge their efforts, understand that they leave their families away, try to do favor to us, favor to the continent, to take us, or rather give us that peace and harmony, what even they deserve. But they risk their lives. Let's salute those heroes for life. Thank you so very much, my friends.
बहुत ही स्पेशल अवार्ड्स हैं बिकॉज़ ये अवार्ड्स रियल लाइफ नहीं रियल लाइफ हीरोज़ को मिलने वाले हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई माई सेल्फ कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, सो आई नो कि कितना अच्छा कितना प्राउड फील होता है किसी भी डिफेंस बैकग्राउंड में से किसी भी फैमिली को जब अवार्ड मिलता है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अनिल जी फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क. What I will say about कि I was asking Mr. Anil also actually real life में हम लोग बहुत we make a lot of things. Yeah. रियल लाइफ में जो हीरोज होते हैं उनको हम ज़्यादा लोग फेस करते हैं. Actually. रियल लाइफ जिनको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता. हाँ जी. What I want to say about this? डेफिनेटली क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है आपके पास सेकंड टेक नहीं होता है. आप सब जो भी कर रहे हैं अपनी जान हाथ में लेके कर रहे हैं. और रियल लाइफ में डमीज़ होता है, आप कुछ भी करिए दैट इज़ डिफरेंट. बट एक्चुअली जो लोग हमारे लिए कुछ कर रहे हैं वो सच में रियल लाइफ के हीरोज़ हैं, चाहे वो आर्मी से हों, चाहे नेवी से हों, चाहे एयरफोर्स से हों या पुलिस से हों. क्योंकि वो लोग हर दिन अपनी जान हथेली में लेके निकलते हैं, चाहे कोई फेस्टिवल हो चाहे ना हो. हम कितना भी इंजॉय करें, हम फेस्टिवल इंजॉय करते हैं जैसे होली दिवाली, लेकिन वो अपनी फैमिली के संग होली या दिवाली कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं. और वो हमारी ड्यूटी में लगे रहते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, देश को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो आई थिंक कहीं ना कहीं सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रियल हीरोज़ एक्चुअली हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं जो बॉर्डर में हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो पुलिस है जो यहाँ हमें प्रोटेक्ट कर रही है. सो आई थिंक पीपल डू रिकॉग्नाइज दैट, बट इट्स टाइम दैट वी टेक इट मोर सीरियसली एंड रिस्पेक्ट देम. लोग जानते नहीं हैं उनका सम्मान किया जा रहा है. क्या कहोगे ये अवार्ड? मतलब मैं कहता हूँ कि ये ऐसे ही अवार्ड होने चाहिए कि जो रियल ज़िंदगी में समाज के लिए मदद करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को खुशहाल बनाने में, समाज को साफ सुथरा रखने में, समाज को अच्छे विचार देने में जो लोग आगे हैं वही लोग रियल हीरो है. उन्हीं को सम्मान मिलना चाहिए, उन्हीं को सत्कार मिलना चाहिए. रियल हीरो को रियल हीरो छू भी नहीं पाएगा. आप क्या कहोगे जिस तरह से सम्मान इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है? हाँ, बिल्कुल. क्या कहोगे? बिल्कुल नहीं मिलता. जो रियल हीरो होते हैं, जो हमारे जैसे फौजी भाई हैं, वो फ़ौज पे देश के लिए लड़ते हैं, उनको कहाँ बाकी जो लोगों जो ये सम्मान मिलता है उसके मुकाबले में कहाँ फौजी भाई को इतना सम्मान मिलता है. तो मैं समझता हूँ कि जो रियल हीरो है सबसे पहले उनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो सचमुच हमारे लिए अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं. और सम्मान भी जो है उनको मिलेगा तो सम्मान का सम्मान होगा. बाकी तो जिनको मिलता है फिर तो सम्मान के बाद बोलते हैं आओ पीते हैं, ये मिल गया अब आप आओ दारू की पार्टी करते हैं. अच्छा सुनील जी, लगता है कि हर इंसान एक छोटे वे में अपने अपने तरीके से देश के लिए कुछ ना कुछ जरूरी नहीं है कि वो सरहद पर ही जाकर करे, पर मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि भाइयों बहनों, देश के वासियों, आप किसी नेता के भरोसे मत रहो, किसी ताकत के भरोसे मत रहो, किसी सोशल समाज सेवा के भरोसे मत रहो. आप अपना काम करो, ईमानदारी से करो, क्योंकि आपके घर पे कोई रोटी देने वाला नहीं है. आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, प्यार से करेंगे, अच्छे से करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी समाज सेवा है, वो भी बहुत बड़ी देश सेवा है. तो हाँ, आपके तरीके में एक मैसेज देना चाहोगे लोग आगे आए इस चीज़ के लिए, क्योंकि रियल काम करें? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ देश और दुनिया के सभी तमाम भाई बहनों से कि आप जितना हो सके अपने काम में ही लोगों की मदद करें. जैसे अगर आपका काम मीडिया का काम है तो आप सच्चाई दिखाएं. हमारा कॉमेडी का काम है तो हम साफ़ सुथरी कॉमेडी करें. आजकल वल्गर कॉमेडी करने वाले बहुत आगे, बहुत पैसा भी कमा रहे लोग. मुझसे पूछते हैं कि यार उनको तो इतना मिलता है, आप क्यों नहीं करते वैसी कॉमेडी? मैंने कहा सर, समाज की सारी पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी दे दोगे तब भी मैं नहीं कर पाऊँगा. आपको लोगों तो सस्ते पड़ रहे हैं, आप उनसे करवाइए. मेरे को तो पूरी दुनिया की ताकत दौलत दे दोगे तो भी नहीं कर पाऊँगा. तो मैं समझता हूँ अपने काम में ईमानदारी रखना, सच्चाई रखना, ये बहुत बड़ा देश का कह सकते हैं कि देश सेवा है. और आप करते रहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं. जी, क्या कहोगे? पूरा मुद्दा है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे तो पूरा पब्लिसिटी स्टंट लगता है मुझे. अगर ये 1 दिसंबर को रिलीज हुई पिक्चर तो समझ जाइए पूरा की पूरा प्लान था, प्री प्लान था. क्योंकि हमारे राजपूत भाई जो है वो भोले भाले, उनको ये नहीं पता कि असल में क्या हो रहा है. ठीक है. और रानी पद्मावती का तो मैं सम्मान करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ. लेकिन ये जो बीच के लोग जो फिल्म को प्रमोट करने के लिए और सब चीज़ें कर रहे हैं, ये पब्लिसिटी स्टंट है. इसमें सारे के सारे लोग मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए हैं. ये पहला एक ऐसा एक्सपीरियंस था अवार्ड फंक्शन का, इसीलिए जब मुझे इस बार फिर बुलाया गया तो मैं अपना पूरा समय निकाल के इसलिए आया, क्योंकि ये आपको
एक गर्व महसूस कराता है कि आप उन लोगों को अवार्ड दे रहे हैं जो कि हमारे लिए बॉर्डर पे जा कर के लड़ते हैं और जिनकी वजह से हम ठीक से सो पाते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे डियर जिंदगी अवार्ड्स के बारे में? अवार्ड ज़िंदगी के जिस कार्यक्रम के लिए मैं आज आई हूँ, दीज आर अवार्ड्स फॉर रियल हीरोज़, जो हमारे देश के रियल हीरोज़ है। आर्मी मार्टियर्स, नेवी मार्टियर्स, फायर ब्रिगेड में जो काम करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं, द पुलिस, ये सब जो हमारी आज रक्षा करते हैं और जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए अपनी ज़िंदगी लाइफ गंवा दी, उनके लिए, उनके प्रति हमारा ट्रिब्यूट है। उनके फैमिलीज़ को ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। अनिल जी, आज अमृता जी यहाँ है, व्हाट वुड यू लाइक टू से सपोर्टिंग द कॉज टुडे? Amrita ji is an inspiration on the whole. She's been everywhere for such causes. Really grateful to her that she could squeeze in some time to be here for this evening. Really make a memorable evening for us. लोग रियल लाइफ हीरो को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितनी रियल लाइफ हीरो को नहीं देते हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है ये हमारी माइंडसेट है। एंड मैं तो पर्सनली आई ऑलवेज वर्शिप रियल लाइफ हीरोज़, और इन रियल टर्म्स ये ही वो लोग हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे लिए खड़े हो जाते हैं ज़िंदगी और मौत के बीच फ़र्क ना समझते हुए। तो वी शुड ऑल्सो लिटरली वर्शिप देम, और आई एम प्राउड ऑफ आवर वेरियस फोर्सेस। अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को अवार्ड्स हो रहे हैं उसके बारे में। मैं सॉरी, बहुत रेयरली ऐसे अवार्ड्स होते हैं, एंड दिस इज एन इनिशिएटिव व्हिच एप्पल मिशन इज डन, सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मोर पीपल, आई मीन द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट, व्हाट इज दैट योर टाइप्स? वी शुड ऑलवेज थैंक दीज मार्टियर्स एंड देयर फैमिलीज़। हमारी जो कृतज्ञता है उनके लिए, वो इसी तरीके से व्यक्त होती है कि हम उनको सम्मानित करें, या देयर इज़ अ गवर्नमेंट साइट ऑल्सो जिसमें उसमें अगर आपने डोनेट किया तो दैट गोज़ टू द फैमिलीज़ ऑफ मार्टियर्स। आप धन से या अपने पर्सनल योगदान से, जिससे उनका रिस्पेक्ट उनका कायम रहे, ऐसा कोई भी एक्टिविटी करके उनको आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं या उनको ट्रिब्यूट दे सकते हैं।
Nawaz Madam, all the dignitaries present here, all the people who are supporting this cause, Award Zindagi Ke, which is a cause towards showing our love, solidarity towards the patriotic martyrs. They say it is not the death, but the cause which tells us about a martyr. These martyrs, for them, life is like a feather, but their duty is like a mountain, as heavy as a mountain. So we all have gathered here to salute these martyrs and their families from the police force, from army, from fire brigade department, and so on. I think so they have done too much for us, unimaginable sacrifice, and the people behind them are their families. Had these families not been there, they wouldn't have done what they have for us. So I absolutely salute them. May it be the fire brigade, latest fire brigade incident at Lotus Park, or the people at the army, the soldiers at the army taking care of us at the borders, at the most non-human conditions where they are working from Sechin borders. So salute to all of these martyrs, and because of them we are here. So we must thank them in every possible way, and this is a great way to show our respect to them. Thank you so much for supporting this cause, each and everyone, and Jai Hind, Jai Bharat. Family, wow, what a fantastic initiative, and it sets a very good example for all of us really to stand up there and to acknowledge those who've really literally given their lives for us. These experiences, these events are very humbling. It reminds us not to take any of our freedom, our lives, any of it for granted. And what an ultimate sacrifice this is. I just feel that all of us owe their families, owe them and their families so much more. Emotionally, physically, psychologically, really in all ways, we can never repay them enough. And we all need to stand up there and take cognizance of that and do more back. I recall being at another similar function, Lions, I think, function not very long ago. And some of the panelists and people who were to award out were some Bollywood personalities. And it made me feel so sorry that they didn't even feel it fit to roll out of bed to be present that day. And maybe they had better things to do, and I thought, my God, there's absolutely nothing better to do than be here.